Hello students. In the last class we completed your exercise 2.1 and today we are going to start with your exercise 2.2 and in that we will solve your question number 1, 2 and 3. Students, we are going to start with the new concept about you can say tabulation of qualitative data. So first we will see little bit of some part of theoretical you can say section and after that we will start with your question. Okay. Still you can say 11C only monitors and 2 or 3 students have sent the homework. This would be the last warning for 11C students. अगर इसके बाद में भी homework नहीं आता है तो I will have to complain about your class. Fine. 11th A and B they are doing good, but still I want you can say 11th A में भी अभी भी बहुत सारे बच्चे homework नहीं करते तो please complete your homework. On the basis of your homework, you will be given internals this year. Fine. So it is very important for all of you to complete your homework. Okay. So let us start with your topic today. Okay. So let us start with your exercise 2.2. हम लोग 2.2 में शुरू करते हैं. 2.2 is all about qualitative data. Now we all know there are two type of data. One is quantitative data, which can be termed in case of numbers you can say kg, liter, meter, that is quantitative, and qualitative data means honesty, loyalty, है ना, this works as a qualitative data. So qualitative data are you can say in here the attributes are given and you have to put those attributes in you can say columns as well as rows. ठीक है, rows are something like 1 2 3 4. This would be your rows. Columns are your 1 2 3 4. So you put it in this kind of you can say classification. Now there are two type of you can say classification as you can see on the screen. Simple classification and second would be your manifold classification. Simple classification क्या होता है? It is based on single attributes. You can see single attributes like for example security personnel, peon, clerk, manager. So in school also you can have teacher, peon, principal. So this will be your simple you can say classification. But manifold classification में जैसे for example security personnel है तो security personnel में you would have male, female, है ना. तो you have you can say manifold classification. You have more than one type of rows or one type of you can say कॉलम्स एज वेल. सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक रोज़ होती है अलग यू कैन से देयर you can say 2 or 4 or 5 6 depending on the type of you can say your data. You would have rows. Here we will have rows as well as number of columns are there. So you have to you can say put this into a you can say table. So you have to make use of tabulation. Tabulation का मतलब क्या होता है? It is systematic manner you can say systematic arrangement of what qualitative data. Systematic arrangement of qualitative data, okay, in different rows and columns on the basis of their attributes. Okay. Now what are the uses of this you can say tabulation? It is useful to get the information done easily. आपको जब आप अभी sums करोगे when we will do the sums, so when it is given in you can say paragraph form, so it is difficult to understand for a layman. ठीक है, but maybe if he is not quite literate तो उसको समझने में problem होती है, but table से easily होता है. It can help us to make comparison side by side. हम लोग comparison कर सकते हैं side by side rows and columns का. अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं. रिमूव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत नहीं है. सो इट बिकम्स ओवरऑल इट हेल्प्स टू मेक योर डेटा एनालिसिस ऑफ योर डेटा सिंपल एंड कन्वीनियंट. अपने जो इससे क्या होता है ये जो टेबल है उससे जो एनालिसिस करने वाले पर्सन है उसके लिए वो बहुत ही ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है. ओके, सॉरी, कैंसिल. ओके. These are the uses of tables. While making the you can say table, what care you need to take while making the table? First,
टाइटल शुड बी गिवन यू. आई थिंक वो वाला मैंने पार्ट इसका वो भी लिया है, ये रहा. गाइडिंग रूल्स ऑफ टेबुलेशंस आर, फर्स्ट यू शुड प्रोवाइड विद प्रॉपर टाइटल. ठीक है. देन यू हैव प्रॉपर कैप्शन ऑफ योर रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स को भी प्रॉपर टाइटल या फिर यू कैन से कैप्शन देंगे. ठीक है. देन यू कैन से इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स और जेंडर है या फिर ईयर है, दैट शुड बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया ईयर है, तो it is first, second, third year, and here we have boys, girls. So you should not put here first and then first year and then over here उसके नीचे हम लोग instead of putting boys there, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ year first and then I would put boys. So that is not you can say allowed. अगर आप year की बात करें तो you should only put year, you should not bring gender in between there. Then we have if the value is in more, you can say lakhs of rupees, तो उसको आपको शॉर्टन कर देनी है. एंड यू कैन से बिगनिंग ऑफ द टेबल आपको लिख देना है इन लैक्स और इन थाउजेंड्स लाइक वाइज. ठीक है. अदर देन दैट यू शुड ऑलवेज मेंशन द सोर्स ऑफ डेटा. आपका जो सोर्स ऑफ डेटा आपको हमेशा मेंशन करना है एट द एंड ऑफ द टेबल, सो एज टू यू कैन से so that the person who is using your table, he can check the reliability and validity of your table. आपके टेबल की reliability और validity वो check कर सके. For that you need it. ठीक है. And always do some rough work. Working जो होता है rough working कर लेना चाहिए before making the final table. ठीक है. This is all about your guiding principles or rules for making of tabulation. Now let us start with your exercise 2.2. Now in 2.2 I want first of all of you to have your textbook. सबको मैंने पहले ही बोला हुआ है कि सब लोग टेक्स्ट बुक अपने पास ही रखेंगे. जिसके पास नहीं है वो पहले एक बार टेक्स्ट बुक ले लो पॉज करके एंड देन यू कैन स्टार्ट. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? इट इज़ गिवन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. There are 1400 students studying in a commerce college. Among that 855 are boys and 225 are, you can say, boys in the second year. In the second year the number of boys and girls are equal. Among 550 students the proportion of boys and girls is 3:2 and the number of boys in the, you can say, for third year is 3 times more than the number of girls. Now first of all, when you are doing this type of sum, you have to read one line at a time. ठीक है. ये तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लीड कर दिया so that we can find out the attributes. हमारे attributes क्या रहेंगे? हमारे attributes यहाँ पे रहेगा boys, gender based है तो boys, girls, and year दिया हुआ है first, second and third. 3 साल दिए हुए हैं और boys and girls. तो you can put boys and girls in row, you can say year in column, or you can put girls, you can say बॉयज़ गर्ल्स इन कॉलम और वाइस वर्सा. आप यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स रखो या इस तरफ कॉलम्स में रखो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. आंसर वुड बी सेम. एग्जाम में अगर सपोज आपने यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स लिखा है और आपके फ्रेंड ने यहाँ लिखा है तो बोथ ऑफ यू आर राइट. इफ़ यू आर राइटिंग इन रोज ऑल्सो यू आर राइट. इफ़ यू आर राइटिंग और यू आर मेकिंग पुटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन कॉलम साइड ऑल्सो देन ऑल्सो यू आर राइट. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट द यू कैन से एट्रीब्यूट्स. आप हॉरिजॉन्टली एट्रीब्यूट्स लिखो या वर्टिकली, इट वुड बी सेम. ओके. सो लेट अस मूव फर्दर. मैंने इस तरह से ये टेबल बनाया है. आप लोग इस टेबल को वैसे वर्सा भी बना सकते हो. मतलब इंस्टेड ऑफ पुटिंग बॉयज़ इन कॉलम यू कैन पुट बॉयज़ हियर. यानी यू कैन मेक 3 रोज. इंस्टेड ऑफ 3 रोज यू कैन मेक 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. इट इज़ अप टू. यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स रख के यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रख सकते थे. ठीक है. तो इट इज़ अप टू यू आप किस तरह से टेबल बनाना चाहते हो. अब हम लोग वी विल रीड वन लाइन एट अ टाइम. हम लोग एक बार में एक लाइन रीड करेंगे. सो द फर्स्ट लाइन इज देयर आर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉमर्स कॉलेज. कॉमर्स कॉलेज में टोटल 1400 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. ओके. आउट ऑफ दैट यू कैन से 850 आर यू कैन से बॉयज़. उसमें से 850 नहीं 855 आर बॉयज़. तो यू कैन सी बॉयज़ का जो कॉलम है उसमें आप लोग नीचे जाएंगे. यू विल मूव डाउन हियर. यस और नो. हम लोग यहाँ पर नीचे आके एंड वी विल राइट डाउन 855. ठीक है.
आफ्टर दैट 855 बॉयज़ है. अच्छा, अगर 855 बॉयज़ है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली माइनस 1400 माइनस 1400 में से 855 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इट वुड बी 545. गॉट इट. तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना दो. यू मेक अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, लाइक number of girls is equal to total students minus boys. That is 1400. मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. That is 1400 minus 855. That is 545. Make the working note number 1. In this type of sum, working notes are very important. This will be our first working note. Second working note will be 225. Okay, 855 225 were of second year. ठीक है, तो जो बॉयज़ है उसमें से सेकेंड ईयर के बच्चे कितने हैं, 225 है. और उसमें सेकेंड ईयर में 225 बॉयज़ और 225 गर्ल्स है. गर्ल्स और बॉयज़ की दे आर इक्वल. तो 225 बॉयज़ एंड 225 गर्ल्स आर देयर. तो द टोटल ऑफ 225. सो सेकेंड वर्किंग नोट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यू कैन से इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, you will write down 225 plus 225, that will be your cancel, that will be your 450. कितना होगा ये, 450. ओके, ये मुझे रब कर देने दे तो सो दैट आई कैन यूज इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, 450 हो गया. नाउ लेट अस मूव फर्दर. अमॉन्ग 550 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में 550 स्टूडेंट्स थे. यहाँ पे आ गए 500 एंड सॉरी पेन मैंने इरेजर से 550. फर्स्ट ईयर में टोटल 550 स्टूडेंट्स थे. द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन 550 स्टूडेंट्स इज 3:2. सो 3:2 तो हम लोग करेंगे बॉयज़ इज इक्वल टू 550 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, दैट विल बी 330. ओके, एंड गर्ल्स विल बी योर, ये सब वर्किंग नोट में लिखना है आप लोगों को. अरे यार कैंसिल. यू कैन से हाँ, एंड गर्ल्स इज इक्वल टू योर 550 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, दैट विल गिव यू 220. ओके ओके ओके, देन वी हैव 220 हो गया. अब आप देखिए हमारे पास 2 ही कॉलम मिसिंग है एंड वी हैव 2 कॉलम. फर्स्ट ईयर की वैल्यू हमारे पास है, सेकेंड ईयर की वैल्यू भी हमारे पास में है. तो हम लोग थर्ड ईयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, यू कैन से थर्ड ईयर वैल्यू, थर्ड ईयर यू कैन से बॉयज़ इज इक्वल टू 855, दैट इज टोटल बॉयज़ माइनस 330 एंड 225. 855 minus 330 minus 225, that will give you how much, 300. ठीक है. सेकेंड ईयर के लिए इट इज़ अगेन, लेट मी रब इट ऑफ. सेकेंड ईयर बॉयज़ इज इक्वल टू, ये सब आपको यू कैन से वर्किंग नोट में लिखना है. सेकेंड ईयर बॉयज़ इज इक्वल टू, सॉरी सेकेंड ईयर गर्ल्स इज इक्वल टू 545 माइनस 220. दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर की जो गर्ल्स है, माइनस 225, दैट विल गिव यू 100. आई वुड सजेस्ट कीप डूइंग इट विद मी. अगर आप कहीं पे अटक रहे हो, कैलकुलेशन करना है तो एक बार पॉज करके साथ साथ में करते जाओ. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो सेकेंड ईयर गर्ल्स इज इक्वल टू 545 माइनस 220, यू कैन से 220 माइनस 225, दैट विल बी योर 100. एंड यू कैन से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1400. फर्स्ट ईयर में 550 है, सेकेंड ईयर में 450. तो टोटल उसमें से भी हम लोग फाइंड करेंगे. कैसे, या तो आप 2 तरह से फाइंड कर सकते हो. कैसे, 300 प्लस 100 दैट विल बी 400, या फिर 550 प्लस 450 माइनस 1400, या फिर 1400 माइनस 450 माइनस 550. बोथ द वेज इट वुड बी ओवर हियर, इट विल बी 400.
ठीक है. नाउ चेक द कॉलम्स रोज, टोटल इट शुड बी इक्विवेलेंट. फर्स्ट ईयर का ये जो इन तीनों का टोटल इज 855, इन दो तीनों का टोटल शुड बी 545 एंड यू कैन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स का टोटल विल बी 1400. क्लियर विद दिस? Here working notes are very important. Whenever you make this do this type of sum, आप working notes जितने ज़्यादा बनाओगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको marks मिलेंगे. Fine. I have constraint of place, that is why I am rubbing off the working notes time to time. मैं ज़्यादातर working notes मैं orally बोल रही हूँ and you have to understand and you have to write those working notes. Okay. Let us move further. इसको मैं रब करूँ. चलो रब कर देते हैं. यू कैन से मैंने नेक्स्ट पेज पे अच्छे से किया हुआ है. आप इसको पॉज करके अच्छी हैंड राइटिंग में आपको देखना हो तो यू कैन सी. ठीक है. दिस इज योर यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि देयर आर 1600 एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस. तो एम्प्लॉयज़ है मेन एंड वुमेन, 2 है, और मैरिड एंड अनमैरिड. तो 2 एट्रीब्यूट्स आपके बन जाएंगे. वन वुड बी योर मेल फीमेल, सेकेंड वुड बी योर मैरिड एंड अनमैरिड. तो इसके बेस पे आपको टेबल बनाना है. सो लेट अस मेक द टेबल. अब ये जो मैरिड अनमैरिड है अगर आप यहाँ पर भी रखो या फिर मेल फीमेल यहाँ पर रखो देन ऑल्सो योर आंसर वुड बी सेम. ओके. सो हियर इन दिस क्वेश्चन देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो आप लोग ज़रा ध्यान देंगे एक्सप्लेनेशन पे. ठीक है. फर्स्ट है 1600 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन द ऑफिस. तो यहाँ पर 1600 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद में क्या दिया हुआ है? अमॉन्ग दिस एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ मेन एक्सीड द नंबर ऑफ वुमेन बाय 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है हम लोग अज्यूम करते हैं दैट द टोटल नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. नॉट मेल नहीं लेंगे हम, फीमेल ले लेते हैं क्योंकि उसमें 15% ऐड करना है ना. सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू एक्स प्लस 1600 टोटल है. 1600 इंटू 15%. सो दैट वुड बी 1600 का 15% कितना होगा? डू इट ऑन योर कैलकुलेटर. इट वुड बी 240. सो हियर यू कैन से if female is equal to x then male is equal to x plus 240. ये 240 कहाँ से आया? इट इज़ जो हमारा 1600 है उसका कितना निकाला हमने? 15%. ठीक है. एंड कैंसिल. यू कैन से मेल और फीमेल का टोटल कितना होगा? इट वुड बी टोटल विल बी योर मेल और फीमेल का टोटल कितना है? 1600. तो अगेन आई विल रब इट ऑफ. सो इट विल बी x प्लस, ये सब आपको लिखना है, x प्लस 16. दिस इज़ योर मेल, सॉरी फीमेल. ये फीमेल है आपका x एंड मेल इज़ योर x प्लस 15% वाला जो था. एक मिनट. 15% जो हमने निकाला था हमने ऑलरेडी निकाल दिया है. 1500 इट इज़ 240. x प्लस 240 is equal to your 1600. This is your equation. So अब ये equation को हम solve करते हैं. x plus 240 is equal to यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. 2x plus 240 is equal to 1600. 2x plus 240 is equal to 1600. अब हम लोग क्या करेंगे? 2x को यहीं पर रखेंगे और 1600 minus 240, that will be 2x is equal to 1360. So x is equal to 1360 divided by 2. So x is equal to your 680. अब हमको एक वैल्यू मिल गई, that is x, that is your female. Female is your 680. Okay? मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ. ओके. अभी तक हमने यहाँ पे निकाला 1600 और फीमेल हमारा कितना अभी हमने निकाला था? नंबर ऑफ फीमेल वर
680. टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर 680. और मेल कितना है? द नंबर ऑफ मेल इज योर x plus 240, that is 680 plus 240. 680 plus 240. So that would be your 680 plus 240 will be your 920. Got it? How we did it? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट वन. Now the second equation given over here is the number of unmarried employees are 800 less than the, you can say, married employees. So number of married employees, suppose हम लोग unmarried को A ले लेते हैं. We take unmarried employees as A. So you can say married employees क्या होंगे? 800 minus A. ठीक है, 800 माइनस ए. सो 800 प्लस यू कैन से और जो मैरिड और अनमैरिड का टोटल कितना है आपका? द टोटल ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़ एंड यू कैन से अनमैरिड एम्प्लॉयज़ का टोटल कितना होगा आपका? दैट इज़ अगेन 1600. यस और नो? तो 1600 है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? लेट मी रब इट ऑफ, थोड़ा सा रब कर देते हैं. योर इक्वेशन वुड बी, equation would be A plus A minus 800 is equal to 1600. अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो it will be 2A is equal to 1600 plus 800. So 2A is equal to 1600 plus 800 will be your 20. You can say 400. Yes or no? हाँ, 2400. So A will be your 2400 divided by 2. So value of A is equal to 1200. Now this 1200 is your married employees. यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और ये थोड़ा रब कर देंगे जिससे हम आगे का कैलकुलेशन कर सके. Let me rub it off. ओके, ओके, तो 1200 हमको मिल गया. और अनमैरिड एम्प्लॉयज़ इट इज़ A माइनस 800. सो अनमैरिड एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 1200, दैट वाज योर A, माइनस 800, दैट इज़ योर हाउ मच? 1200 minus 800, how much it will be? It would be 400. Okay, so here we will write out down 400. और अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे 1200 plus 400, that will be your 1600. Fine. Now we have one more information given that the number of unmarried women. तो unmarried women ये रही, unmarried यहाँ से जाएंगे और women यहाँ से आएंगे. सो दिस इज़ द प्लेस यू हैव द वैल्यू प्रोवाइडेड. ये वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अनमैरिड वुमेन? इट इज़ 190. अरे यार लिख दे भाई साहब, 195. दैट इज़ योर 195. अब ये 195 दिए. अब 680 माइनस 195 क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे वर्किंग नोट बना दीजिए. नंबर ऑफ मैरिड वुमेन इज इक्वल टू, हेडिंग दे देना, नंबर ऑफ मैरिड वुमेन इज इक्वल टू 680 माइनस 195. दैट विल बी योर 485. ओके, नाउ यहाँ पर ये ज़ीरो हट गया था, 400. यहाँ पे 400 है एंड यू हैव टू फाइंड आउट अनमैरिड वुमेन. तो अनमैरिड मेल, सॉरी. ओके, तो टोटल में से टोटल नंबर ऑफ यू कैन से अनमैरिड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से फीमेल को माइनस करेंगे तो वी विल गेट मेल. सो इट विल बी यू कैन से अनमैरिड मेल इज इक्वल टू 400 माइनस 195. 400 माइनस 195 करेंगे, दैट विल बी योर 205. एंड हियर इट इज 1200 इज गिवन. 1200 माइनस 485, तो 1200 माइनस 485 करेंगे, दैट विल गिव यू मैरिड मेल. तो मैरिड मेल इज इक्वल टू 1200
minus 485, that will be your 715. Fine. So this is how you've solved your question number 2. Okay, let us move further. I hope all of you understood. मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन शायद लिखा होगा, ये रहा. See, it is as it is 715, 205, 920, 485, 195, 680, 1200, 400 and अरे भगवान and 1400 and 1600. ठीक है, this is your question number 2. Okay, let us go to your question number 3. Question number 3 बहुत ही easy है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यू हैव टू मेक द टेबल. आपको टेबल बनाना है, तो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं एक टेबल. क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडेट who appear for the job of bank. Designation manager, clerk, cashier, peon. Marital status married, unmarried, gender female and male. तो ये 3 leveled आपका टेबल बन जाएगा. कैसे? Let us start with one by one. पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट. यू राइट डाउन द पोस्ट. उसमें आप लिख दो मैनेजर, क्लर्क, मैनेजर, देन वी हैव क्लर्क, देन वी हैव कैशियर. मैं एक एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है. देन वी हैव प्यून एंड दैट विल गिव यू टोटल. Then you have marital status, and in marital status you have male as well as female. So first you will put the marital status as married, and in married you would put male, then you will put female, and then male और female का total. ठीक है, marital status में male female का total. Then you will put unmarried. Unmarried में you will have male, female and then total. आपको एक एक word use नहीं करना है. And third would be your total candidates. मैं इसको थोड़ा कैसे बनाऊँ? इतना आपने बना लिया. नाउ आफ्टर मेकिंग दिस मच, मैं एक बार रब कर देती हूँ. जो आपका थर्ड कॉलम, जैसे मैरिड का और कैंसिल भाई, मैरिड और अनमैरिड का, अरे भाई साहब, ओके, मैरिड और अनमैरिड का कॉलम बना दिया हमने. मैरिड और अनमैरिड में यू हैड मेल, फीमेल and total. Unmarried में you had male, female and total. Then we have total candidates. In that you will have male, female and total. ठीक है. So this is how 3 leveled you can say table you will make. इसका एक मैंने अभी तक बनाया नहीं है, शायद मेरा रह गया है in this gosh, मैंने इसमें बनाना रह गया, छूट गया है. तो मैं इसका एक टेबल बना के आपको एक PDF भेज दूंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3. सो विद दिस वी कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 टुडे. आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 किया है. देन टुमारो वी विल डू योर क्वेश्चन नंबर 5 and 6. वो थोड़े लंबे हैं, ठीक है. Try to complete these questions on your own and complete the you can say illustrations. उसके अलावा आप लोग illustrations भी complete करें, ठीक है. So with this we complete our lecture. Goodbye for now, students. Stay home, stay safe, and prepare for the test. Okay, goodbye for now, students.